Welcome back students, this is the next video of chapter Light, Shadows and Reflection. In the previous video we have discussed some facts about shadow. In this video we will continue with the topic shadow. Our next topic under shadow, that is eclipse. I know most of you must know that what is eclipse. Can anybody tell me what is an eclipse? Yes, when the heavenly bodies like sun, earth and moon, they come in a straight line. They all come in a straight line. At that moment they block the light of sun. Means sun is the source of light. Earth and moon, they come in between each other. Means in one case the earth comes between sun and the moon, and in the second case the moon comes in between the sun and the earth. In both the cases the shadow of one body falls on other, due to which eclipse are formed. So let's start with our first topic. So before that, what is the definition of eclipse? तो क्या definition होगी eclipse की? Eclipse as the shadow, it is the shadow formed by heavenly objects. What are eclipse? These are the shadows. These are the shadows formed by heavenly bodies. Heavenly bodies like sun, moon, earth, these heavenly bodies. Mainly earth and moon. Sun is the source of light, so sun can't make a shadow, it just gives the light. Shadow is formed by moon and the earth, by heavenly bodies. Okay, our eclipse is of two types. Means I have discussed that there are two cases. In first case, in one case the moon is between sun and the earth, and in second case the earth is between moon and the sun. So there are two types of eclipse. First one is lunar eclipse. Can anybody tell me what is lunar eclipse? Eclipse we have done in previous class also. What is lunar eclipse? Can anybody tell me क्या होता है lunar eclipse? First, this is on full moon day. Full moon day कौन सा होता है? When the moon is totally visible, the whole circle of the moon is visible, that is full moon day. On full moon day, the sun, the moon and the earth. Sun, moon and earth. कौन कौन से तीन objects? I am writing here. Sun, moon and earth. All these three are in straight line when on a full moon day. So when earth is between, in lunar eclipse the earth is between sun and moon. Okay, the earth is between sun and moon. Suppose this is my sun. This is my sun. I have said that earth is between moon and sun. So there is earth and there is a moon. These all three are in a straight line on lunar eclipse. The lunar eclipse fall on which day? On full moon day. On full moon day the sun, the earth and the moon are in straight line and the earth is between sun and the moon. So what will happen? Earth जो कि bigger है size में and it is an opaque object. It is opaque and it is larger in size. तो क्या होगा? sun की जितनी भी lights हैं वो इसके ऊपर जाएंगी. It will fall a shadow. It will make a shadow on the moon. इससे क्या होगा? moon के ऊपर एक shadow बन जाएगी. Means यहाँ से तो sun की rays आ रही हैं. Okay, but as the earth is between sun and the moon, what will happen? The shadow of earth falls on the moon, and this condition is known as a lunar eclipse. When the earth covers completely, अर्थ किसको completely cover कर रही है? मून को.
क्यों कम्प्लीटली कवर कर रही है? वाई? बिकॉज अर्थ इज लार्जर देन मून, मून का साइज छोटा है, अर्थ का बड़ा है, तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ कम्प्लीटली कवर्स द मून एंड it will make a shadow on the moon by completely covering the moon, and that condition is known as a lunar eclipse. Okay, second one is a solar eclipse. अब second one क्या है? It is a solar eclipse. If the lunar eclipse falls on full moon day, the solar eclipse falls on new moon day. Conditions same, sun, moon and earth are in straight line, but the difference is sun, this is the source of light, okay, as in previous eclipse, that is lunar eclipse, moon is between sun and the earth was between sun and the moon. So in this eclipse, moon is between sun and the earth. This is earth, this is moon. Sun, earth and moon, all the three are in a straight line, but the moon is between earth and the sun. So what will happen? As sun is smaller in size, so it will make a shadow on the earth. इसकी रेस जा रही हैं तो इतने पोर्शन पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ शेडो ऑफ मून. सो द मून विल कवर द अर्थ और इट विल मेक अ शेडो ऑन द अर्थ. सो द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दिस एरिया, जितने पीपल इस एरिया में रह रहे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सी द सन. सो दिस कंडीशन इज नोन एज अ सोलर एक्लिप्स. सो अंडरस्टूड what is a solar eclipse and what is a lunar eclipse? In lunar eclipse, sun, moon, earth are in a straight line, but earth blocks the light of sun, or earth is between moon and sun. In solar eclipse, and one more thing about lunar eclipse, that eclipse is on full moon day. Okay, second is solar eclipse. In solar eclipse, same as lunar eclipse, sun, moon and earth are in a straight line. ठीक है. In this eclipse, moon is between earth and sun. Okay, moon is between sun and earth. And one more thing, that it falls on a new moon day. What is the new moon day? New moon day is the day when moon is not visible. जब moon visible नहीं होता है, that is known as new moon day. And on a full moon day, the complete circle of a moon is visible. So clear what is the difference between solar and eclipse and a lunar eclipse. Okay, that's all for today. Thank you. Hello students, welcome back. This is a science class and we were doing a chapter number 2 of physics, that is light, shadows and reflection. In the previous videos we have completed our topic till eclipse. We have discussed two types of eclipse, that is solar eclipse and lunar eclipse, which occurs when all the three heavenly bodies like sun, earth and moon, they come in a straight line and one body falls on the other body and impart a shadow of themselves on the other body. So moving with our next topic, today we will discuss our next topic, that is pinhole camera. Pinhole camera. So before starting with the topic, have you ever wondered that nowadays we all know that whenever we are in any event or we are doing some activity, for that we used to click our pictures so that we can store them as a memory. हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं ना हर एक इवेंट की. अगर आप कहीं पे आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है, यू डू क्लिक पिक्चर्स. हो कि आप एल्बम बनाते हो उसकी, आप वीडियोस बनाते हो. अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे गए हो, देयर यू क्लिक द पिक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड यू मेक वीडियोस. वो क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसकी मेमोरी बना के रखें. तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो आजकल कैमराज हमारे पास हैं, जिन कैमराज पे हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं, ये सबसे पहले कैसे बने होंगे? मतलब आजकल तो जो हमारे कैमराज हैं, इफ़ यू सी देयर आर मोबाइल्स विद ट्रिपल कैमरा, 4 कैमराज. ओके, मतलब विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा
एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आपने कभी भी सोचा है कि हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है या फर्स्ट ऐसी चीज़ कैसे आई होगी कि अगर हम कुछ कर रहे हैं हम उसको किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके उसकी एक पिक्चर बना सकें? ये कहाँ से आई? ये सबसे पहला जो हमारा कैमरा था दैट वाज पिन होल कैमरा। सो अ पिन होल कैमरा, सबसे पहले जो हमने वीडियो, किसी ने पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड की थी, पिक्चर रिकॉर्ड की थी बेसिकली, दैट वाज विद अ पिन होल कैमरा। जैसे आजकल अगर आप देखो तो हमारे जो कैमराज होते हैं दे आर हैविंग लेंस, उनमें लेंस होते हैं ना, फोकस करने वाले लेंस या अल्ट्रा शॉट लेने वाले लेंस, ब्रॉड शॉट्स लेने वाले लेंस, ओके। लेकिन जो पिन होल कैमरा था दैट वाज अ सिंपल कैमरा विदाउट एनी लेंस। इट वाज अ कैमरा, इट वाज अ सिंपल कैमरा without any lens. विदाउट एनी लेंस, ये एक सिंपल कैमरा था जिसमें कोई भी लेंस नहीं था। ये वर्क कैसे करता था? इट इज़ अ लाइट प्रूफ बॉक्स, ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स था विद अ स्मॉल होल। जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके रूम में एक छोटी सी होल हो और आपका फुल रूम डार्क हो तो वहाँ से लाइट ट्रेवल हो जाती है। वहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारा पिन होल कैमरा है, पिन होल कैमरा, दैट वर्क्स एग्जैक्टली दैट वे, ओके। ये भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ बॉक्स, एक बॉक्स है ये लाइट प्रूफ बॉक्स जिसमें से लाइट पास होती है विद अ स्मॉल होल ऑन वन साइड। एक साइड पे स्मॉल होल होती है। जैसे मैंने ये एक बॉक्स ले लिया, आई विल ट्राई टू मेक इट अ 3D शेप, ओके। दिस इज़ अ बॉक्स, लेट्स सपोज दिस इज़ अ बॉक्स, ठीक है। ये एक बॉक्स है जिसमें दे हैव अ होल एट वन साइड, यहाँ पे एक स्मॉल होल है, लाइट प्रूफ है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब इसमें से इसमें लाइट आएगी तो वो बाहर नहीं निकलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना वाटर प्रूफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा कि जब यहाँ से सन की रेज पड़ेगी या किसी भी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से, सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से रेज आएंगी तो वो इसके बाहर नहीं जाएंगी। मीन्स इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर चली जाएंगी तो शेडो कैसे बनेंगे? बेसिकली दिस कैमरा वर्क्स ऑन द शेडो प्रिंसिपल, शेडो बनती है इसमें, ओके। पिक्चर बनती है, क्लियर इमेज बनती है। सो इट इज़ अ बॉक्स, लाइट प्रूफ बॉक्स विद होल ऑन वन साइड। लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पासिस थ्रू द होल। अब यहाँ से कुछ लाइट आ रही है दैट पासिस थ्रू द होल एंड कास्ट अ इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज आता है। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, कि मतलब अगर कोई चीज़ सीधी रखी है तो उसकी इमेज कैसी आएगी? ऑपोजिट। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी, ओके। तो इसमें क्या है, पिन होल कैमरा में व्हेन लाइट पासिस थ्रू दिस होल, तो हमने जिस चीज़ की पिक्चर लेनी है वो उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनेगी। सो लेट्स फोकस ऑन द वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा। ये वर्क कैसे करता है? अ पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पता है हमें कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री travel in a straight line. Suppose if I am having a tree here, okay, light rays will travel. अब यहाँ से लाइट रेज कैसे जाएंगी? यहाँ से ऐसे लाइट रेज पास होंगी, यहाँ से ऐसे लाइट रेज पास होंगी, ओके। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल कैमरा फॉल ऑन अ पॉइंट बी। अब इसको अगर मैं ए पॉइंट ले रही हूँ तो मेरी यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ऑपोजिट इमेज बनेगी। अब देखो ये वाला पॉइंट कैसे जाएगा? ऐसे ऊपर को। ये वाला पॉइंट कैसे जाएगा? ऐसे नीचे को। तो मेरा यहाँ पे ऑपोजिट इन्वर्टेड, ऑपोजिट और इन्वर्टेड ट्री की पिक्चर बन जाएगी, ओके। मतलब टॉप वाली जो रेज हैं, टॉप की जो रेज हैं दैट विल गो टू पॉइंट ए पॉइंट पे जाएंगी। बॉटम वाली कहाँ पे जाएंगी? पॉइंट बी पे। सो देयर विल बी अ inverted image of the tree, okay. Now can you imagine or can you think that what will be the shape of the what will be the size of this image? Means अगर मेरा ट्री इतना बड़ा है तो ये कितनी बड़ी होएगी?
जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शेडो की जो लेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। वैसे ही पिन होल कैमरा में इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट इज़ रिड्यूस, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को और नज़दीक ले आऊँ, ठीक है, तो मेरी इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी, द इमेज विल बी द लार्जर। और अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके दूर ले जाऊँ तो इमेज विल बी स्मॉलर। ओके, तो पिन होल कैमरा वर्क कैसे करता है, दैट फ्रॉम वन पॉइंट द रेज फॉल थ्रू द through the hole and falls on the opposite side of the box, and another ray falls from the bottom and falls on the upper side of the box, and there an inverted image is formed. The size of this image depends upon the distance between the camera and the object. If the distance is reduced, the image is larger. If the distance is increased, the image is smaller. Okay, and one more thing, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दिस होल। ये जो मैंने यहाँ पे होल किया पिन होल कैमरा में, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है साइज ऑफ द इमेज, शार्पनेस ऑफ द इमेज। ओके, उसके बाद है एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पिन होल कैमरा। फर्स्ट एडवांटेजेस है दैट इट इज़ अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, घर पे भी बना सकते हो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ये। इनएक्सपेंसिव क्या है, वी जस्ट नीड अ बॉक्स and we have to mark a hole inside it. Okay, it is inexpensive and simple. Second, अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे, without any lens, लेंस नहीं डालना तो inexpensive तो हो ही गया, means it does not have any lens in it. And third, अब जैसे आजकल आप देखते हो फोटोग्राफ खींचते हैं मोबाइल पे, तो we have to focus on some things, वो फोकस करना पड़ता है ना, ऐसा सिंबल्स आ रहा होता है, आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस हो जाता है। तो जब इसमें लेंस ही नहीं है तो नो नीड ऑफ फोकस। ओके, उसके बाद है हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर इसकी अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पिन होल कैमरा। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, जो इमेज बनेगी, एक तो वो ऑपोजिट बन रही है, दूसरी क्या है, फेंट डार्क इमेज नहीं बन रही है, फेडेड सी इमेज बन रही है। और सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट सीधा उसकी इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज द इमेज इज फेडेड एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूव करती हूँ ऑब्जेक्ट को, इमेज नहीं बनेगी, मीन्स इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बन जाएगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हूँ, इमेज नहीं बनेगी। सो इट डज नॉट वर्क फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एंड फिफ्थ, अब यहाँ पे जो इमेज बनी है क्या वो परमानेंट है, मीन्स अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा दूंगी तो क्या मेरी इमेज रहेगी, नो। तो ये जो इमेज है दैट इज टेम्परेरी, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये तब तक रहेगी जब तक मेरा ऑब्जेक्ट पिन के कैमरा के आगे रहेगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट मूव कर दिया इमेज खत्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट पिन होल कैमरा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द last topic of the chapter, that is reflection and mirrors. Thank you so much. Welcome back students, this is our science class and today this is our last video of chapter number 2 of physics, that is light, shadow and reflection. Till now we have discussed various things. We have discussed about light, what is light, what are the sources of light. We have discussed about shadow, eclipse. In the previous video we have discussed one more topic, that is pinhole camera. Now moving on to our next topic of the chapter, that is reflection. Okay, before starting the topic, have you ever seen कि जैसे सनराइज होता है, आपने पिक्चर्स देखी होंगी सन की कि सनराइज हो रहा है, यहाँ पे वाटर है यहाँ पे और उसमें उसकी रिफ्लेक्शन, उसमें भी इमेज दिख रही है सन की। फोटोग्राफ्स बहुत होती हैं, बहुत लोगों को ये शौक भी होता है ऐसी पिक्चर्स क्लिक करने का। ओके, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, मतलब अगर हमने ऐसी पिक्चर क्लिक करनी है, मीन्स वी नीड सम वाटर बॉडीज़ चाहिए, हमें कोई रिवर चाहिए, कोई सी, या हमें कोई ओशियन चाहिए, ठीक है, सन तो अवेलेबल है ही। फॉर दैट वी हैव टू गो समवेयर टू क्लिक दैट टाइप ऑफ इमेजेस। ओके, ये चीज़ें होती कैसे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि सन यहाँ पे है, उसकी इमेज हमें वाटर में दिखाई देती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसमें ये किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन अब क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है when light from a source falls on an object। जब ऐसे यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, मैंने उसमें से लाइट ऑन की, इस पे स्ट्राइक की एंड यहाँ से वो बाउंस होकर वापस हमारी आईज में जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट। कहाँ से बाउंस बैक होएगी लाइट? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के बेंचेस विंडो साइड पे होते हैं, जब हम विंडो को ओपन करते हैं और कई बार जब सन साइड पे होता है, उस साइड पे जिस साइड विंडो है उस साइड सन होता है, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ती है टेबल पे, आपके जो बेंचेस होते हैं वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखती है ना, आप बोलते हो कि मैम वो आंखों में आ रहा है कुछ, मतलब उसकी लाइट आंखों में जा रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्यों है? रिफ्लेक्शन की वजह से। तब क्या होता है, सन जैसे यहाँ पे है, इसकी रेज कहाँ पे जाएंगी? ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इसकी रेज पड़ी और यहाँ से ये कहाँ चली जाती है? हमारी आइज में, दे बाउंस बैक। और यहाँ पे जैसे हम बॉल की बाउंसिंग करते हैं, बॉल को नीचे फेंकते हैं फिर वो वापस आती है, सेम हमारी रिफ्लेक्शन होती है। सन की रेज पड़ी, वहाँ से वो बाउंस होकर वापस चली जाती है, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर रिफ्लेक्शन है तो कुछ सरफेसेस होंगे जिनसे रिफ्लेक्शन होएगी, देयर मस्ट बी सम सरफेसेस, तो वो होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। कौन कौन से रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं हमारे? हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं लाइक वाटर, मार्बल, जो हमारी टाइल्स होती हैं घर पे, मार्बल, हमारे जो बेंचेस हैं, बेंचेस के ऊपर अगर शाइनी सी कोटिंग हो ना, दैट शाइनी कोटिंग इज द रीजन बिहाइंड रिफ्लेक्शन। वो शाइन की वजह से रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे। ओके, मेटल, मिरर एंड मैनी मोर, these are some common reflecting surfaces, there are more than that. Okay, so now I have written a word mirror, I have written a word mirror. Can you tell me what is a mirror? जैसे सबके घर पे मिरर्स हैं, आप रेडी होते हो, आप जब कहीं पे आपने जाना होता है, अपने स्कूल आना होता है, आप रेडी होते हो, आप अपने आप को मिरर में देखते हो। मिरर में देखते हो ना, वो क्यों देखते हो? मीन्स हम किसी भी चीज़ को क्यों देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हर जो ऑब्जेक्ट है हमारे अराउंड, उसके ऊपर सन की रेज पड़ती हैं, वो रेज वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और हमारी आइज़ में जाती हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो एक हमारे मिरर्स होते हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मिरर्स क्या होते हैं? जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैं सपोज यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने एक मिरर है, उसमें मैं अपनी इमेज देखूँगी, खुद को देखूँगी, वो कैसे देखूँगी? मेरे सामने, वी नो सन इज़ एवरीवेयर, सनलाइट तो डे टाइम में हमें सब जगह मिल जाएगी। यहाँ पे उसमें क्या होता है कि सन की रेज मिरर पे पड़ती हैं, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, वो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे अपना आप दिखाई देता है, तब मैं खुद को देखती हूँ मिरर में, दैट इज़ रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। अब ये जो मिरर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन जो हमारे घर पे होते हैं, जो हमें, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, रेडी होते हैं, ठीक है, दैट आर प्लेन मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? जैसे आप व्हीकल्स तो सबके घर पे हैं, स्कूटी होएगी, मोटर बाइक होएगी या कार होएगी, सबके घर पे है ना, तो जो उनके साइड्स पे जो मिरर लगे होते हैं उनको कभी भी ध्यान में देखना, वैसे कर्व सी शेप में होते हैं, दैट आर स्फेरिकल मिरर्स। वो स्पेशल टाइप के मिरर्स होते हैं, उनको स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। या कुछ मिरर्स जब हम कई बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने टीथ दिखाने के लिए, उनके पास एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना जिसमें एक मिरर होता है,
ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर जो हमारे सिंपल घर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज देयर आर सिंपल टॉपिक्स, डेफिनेशंस ओनली। इमेज, अब मैं बोली जा रही हूँ बार बार कि मैं मिरर के आगे खड़ी हूँ, मेरी इमेज मिरर के सामने आएगी। इमेज क्या होती है? इट इज़ अ पिक्चर। इमेज क्या होती है? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहाँ पे होती है? विच इज़ सीन इन द मिरर। मैं मिरर के आगे खड़ी हूँ, मेरी इमेज कहाँ पे आएगी? मिरर में। सो व्हाट इज़ एन इमेज? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हूँ? मैं। मेरी पिक्चर कहाँ पे आएगी? मिरर में। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। So what is an image? It is a picture of an object formed in a mirror due to reflection. किसकी वजह से बनती है इमेज? रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, अब इमेज मैंने बता दी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, अब मैंने दो तरह के मिरर्स बताए हैं, ठीक है। दोनों मिरर्स में ना डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनती हैं। हमने बेसिकली किसको करना है? प्लेन मिरर को कंसीडर करेंगे हम। अब इमेज है, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में किया, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ शेडो। शेडो उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, जैसे हमने पिन होल कैमरा में किया था कि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, ऑपोजिट उल्टी बन जाती है। वैसे ही इमेज की भी कुछ नेचर है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज? मीन्स अगर प्लेन मिरर है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उसके अंदर जो मेरी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? स्ट्रेट बनेगी। उससे पहले इमेजेस जो होती हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, दो तरह की इमेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने मिरर की बात की है, मैं मिरर के आगे खड़ी हूँ, तो मैं जब तक मिरर मेरे सामने, आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर, बट इफ़ आई प्रोजेक्ट अ स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, तो मेरी इमेज नहीं आएगी, वो स्क्रीन पे नहीं आएगी। मतलब मैं अगर मिरर के आगे खड़ी हूँ, क्या मैं उस चीज़ को स्टोर कर सकती हूँ वहाँ पे? वो वहीं पे रहेगी? नहीं रहेगी ना। जब मैं मूव कर जाऊँगी वहाँ से, मेरी इमेज ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि जो और दूसरी चीज़ क्या है मिरर इमेजेस के बारे में, कि प्लेन मिरर में क्या बनेगी इमेज? वो स्क्रीन पे नहीं आएगी, जैसी मैं हूँ वैसे ही दिखाई देगी, ठीक है। इमेजेस कितने टाइप की होती हैं? रियल एंड वर्चुअल। जो हमारी रियल इमेज है, अब मैंने बोला कि अगर वहाँ पे स्क्रीन होएगी तो उस पे ऊपर इमेज नहीं आएगी, ठीक है। तो एक इमेज ऐसी भी होएगी जो स्क्रीन के ऊपर शो होएगी। तो जो इमेजेस स्क्रीन के ऊपर शो होती हैं, स्क्रीन के ऊपर हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट आर नोन एज रियल इमेजेस, ठीक है। ये कौन सी इमेजेस होती हैं? ये ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। These images can be obtained on screen. तो ये कौन सी होएगी? Not obtained on screen. Cannot be obtained on screen. ये स्क्रीन पे इमेजेस बनेंगी ही नहीं, ओके। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं बार बार प्लेन मिरर की बात कर रही हूँ कि मैं इमेज मिरर के आगे खड़ी हूँ, तो आपने क्या करना है? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। अपने में और इमेज में फ़र्क देखना क्या है। क्या आपकी इमेज आपकी हाइट से छोटी हो जाएगी? क्या वो बड़ी हो जाएगी? अगर आप मिरर यहाँ पे है, मैं बिल्कुल उसके नज़दीक खड़ी हूँ, तब कैसी इमेज होएगी? मैंने वहाँ से कुछ जगह चेंज कर ली, पीछे चली गई, तो इमेज कैसी होएगी? ठीक है, दिस यू हैव टू चेक। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि अब सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इमेजेस की जो प्लेन मिरर से बनती हैं। मैंने आपको बोला कि आपने चेक करने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की। सो आई विल टेल यू इन एडवांस। मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, होती हैं। एक तो मैं खड़ी हूँ, मेरी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ये नहीं है कि मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी इमेज उल्टी आएगी या टांगे ऊपर होगी और सर नीचे। नो, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर्स ओनली। तो इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, जैसी खड़ी हूँ वैसी इमेज। सेकेंड, मैंने भी आपको क्या बोला था, आपने क्या चेक करना है? डिस्टेंस, थोड़ा आगे होके थोड़ा पीछे होके। मतलब अगर मिरर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ,
तो मेरी इमेज मिरर में उतनी ही दूर बनेगी। ये चेक करके देखना, उतनी ही दूर आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आएगी व्हेन यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब आप मिरर के बिल्कुल पास में खड़े होगे आपकी इमेज नज़दीक आएगी, जब आप दूर हो जाओगे तो आपकी इमेज मिरर से आपको पता चल जाएगा कि दूर कैसे है। ओके, इट इज़ ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट इज सेम साइज़ की, जितना मेरी लेंथ है वैसी बनेगी, जो मेरी शेप है वैसी बनेगी, जैसी मैं हूँ मेरी इमेज वैसी बनेगी। इट इज़ ऑलवेज सेम एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड, इट मीन्स राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लेटरली इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने मिरर है, जो मेरा राइट हैंड होगा वो मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये तो उल्टा दिखाई देता है। ये नहीं है कि मेरी लेग्स ऊपर चली जाएंगी या मेरा फेस नीचे चले जाएगा, बस डिफरेंस क्या आएगा बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ माई बॉडी। जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरा राइट शो होगा मिरर इमेज इन द प्लेन मिरर, और जो मेरा राइट हैंड है दैट विल बी सीन एज अ लेफ्ट हैंड इन द मिरर। उसके बाद है लास्ट टॉपिक, शेडो एंड इमेज। शेडो एंड इमेज को कंपेयर करके देखो। थिंक अबाउट व्हाट इज अ शेडो एंड व्हाट इज एन इमेज। शेडो क्या होती है? ये डार्क कलर की होती है। कब बनती है? व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, तब बनती है शेडो। और इमेज मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज एन इमेज? इट इज अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है, ये ब्लॉकिंग की वजह से बनती है। दोनों बनती तो मेनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही हैं। इमेज में हम सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स को नहीं लेते हैं, इट इज़ बेसिकली फॉर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और ये डार्क इमेज होती है। ठीक है। सेकेंड, जैसे हम हैं इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनती है, लेकिन शेडो को कभी ध्यान में दिया है? शेडो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। ऑब्जेक्ट और सोर्स में कम डिस्टेंस है, शेडो बड़ी बनेगी। ज़्यादा डिस्टेंस है, शेडो छोटी बनेगी। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है तो हमारी बिल्कुल छोटी सी शेडो बनती है। अगर साइड पे होता है तो हमारी, अगर इस साइड सन है तो इस साइड इमेज बनेगी, सॉरी शेडो बनेगी, और वो लंबी शेडो बनेगी। शेडो इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। इसका साइज डिपेंड करता है। इसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। ठीक है। ये हमेशा ब्लैक कलर की बनेगी, शेडो इज ऑलवेज ब्लैक, ये कभी कलरफुल नहीं होती है। लेकिन इमेज, अब मैंने ये अगर कलरफुल कपड़े डाले हैं तो मेरी जो इमेज मिरर में आएगी वो वही कलर की आएगी। अगर ये तो है नहीं कि मैंने अब पीच कलर का डाला है और मुझे मिरर में ब्लैक दिखाई देगा, नो। सो शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, बट इमेज, इट इज़ द कलर ऑफ इमेज। कलर ऑफ इमेज इज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का कलर है वही किसका कलर होएगा? इमेज का कलर होएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। नाउ वी हैव डन आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।